So I want to talk little bit about repair the house of God in your life. तो मैं कुछ तो बात करना चाहता हूँ कि अपने परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करें अपने घर में. Repair the house of God in your life. तो अपने जीवन में परमेश्वर के घर की मरम्मत करें. Amen. हालेलुया. If the house is not repaired अगर घर की मरम्मत ना हो in the seasons of rain, winter and summer, you will have a problem. तो जब भी बारिश की ऋतु में, ठंड की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में घर की मरम्मत न होने से आपको तकलीफ हो सकती है. हाँ या ना? Yes. Yes. So we need to repair the house of God in our lives. तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के घर की मरम्मत करना. Why we need to repair the house of God in our life? क्यों हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के घर की मरम्मत करनी है? Number one, your body is the temple of the Holy Spirit. सबसे पहला आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. It is the dwelling place of God. और वो परमेश्वर के बसने का स्थान It है. is a house of prayer where we meet God. और वो एक परमेश्वर का घर है जहाँ हम परमेश्वर से मिलते हैं. Turn to somebody and say, yes, it is for me this morning what pastor is speaking. तो आज किसी से मुड़ के कहो, हाँ आज मेरे लिए ही पास्टर बात कर रहे हैं. You know what is the why we need to repair the temple or house of God in our life? और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के घर की मरम्मत करना क्यों Because जरूरी it's है? very simple. We are the temple of God. बहुत ही आसान है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं. It's very simple that God, our heart is a dwelling place of God. ये बहुत ही साधारण बात है कि परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है. It is the house where the prayer happens and God meets you और and वो me. ऐसा घर है जहाँ प्रार्थना होती है और परमेश्वर आपसे मिलने आते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Are you there with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you understand this, you will be a blessing on the earth for the glory of God. तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा होगी. Think about, you become the temple of God और सोचो, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते and हो you become a dwelling place of God और आप परमेश्वर के अंदर बसते हो. and God meets you every day in prayer. प्रभु प्रार्थना में हर रोज आपसे मिलते हैं. And you know what happens? There is an dhamaka when God meets you inside your life. और जब भी आपके जीवन में परमेश्वर आपसे मुलाकात लेते हैं तभी एक धमाका होता है. Are you there with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. When Hallelujah. God meets you, और जब भी परमेश्वर आपसे मिलता है your prayers are answered. तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर Your मिलता है. needs have been met. आपकी जरूरतें पूरी हो जाती That's है. what the house of God is a great need in this end times. और इसीलिए इस अंत समय में परमेश्वर के घर की बहुत ज्यादा जरूरत In the है. year 2020, third season we are in. और जैसे 2023 के मौसम में हम हैं, In the year 23, God wants to dwell inside of our lives. तो इस 2023 में परमेश्वर आपके अंदर बसना चाहता That's है. what Psalms 23 verse 6 the Bible says. इसीलिए भजन संहिता 23 में वचन कहता है, 23 verse 6 the psalmist. 23:6 के अनुसार, He said, I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा. Turn to somebody and say, I will dwell in the house of the Lord forever. और किसी से तो मुड़ के कहो, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा. I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा निवास करूंगा. Are you there with me? क्या आप मेरे Say साथ to the हैं? Lord, I will dwell in the house of the Lord forever. और किसी से तो मुड़ के कहो कि मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में प्रवेश करूंगा. I will dwell in the house of the Lord forever. और पढ़ो कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. Are you there? हालेलुया. Amen. Amen. Now you understand how God meets you and He wants to answer your prayers and He wants to meet your needs. और आप समझिए कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे मिले और आपकी जरूरतों को समझे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे. May I will dwell in the house of the Lord forever. और कहो, मैं सर्वदा यहोवा के धाम में निवास करूंगा. This was the prayer of David. तो यही दाऊद की प्रार्थना I थी will dwell in the house of the Lord forever. कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास You know करूंगा. why I am repeating again and again, Pastor? मेरे को मालूम है.
और आप क्यों बार बार दोहराए रहे पास्टर, हमको मालूम है। If you are मालूम है, then why your prayers are not answered? इफ यू नो ऑलरेडी, तो क्यों तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा Why है? your prayers are not answered? क्यों तुम्हारी प्रार्थनाओं का Why उत्तर your नहीं आ रहा है? needs are not met? क्यों आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है? Because somewhere the Lord is saying, you have to become my dwelling place. तो कहीं तो परमेश्वर कहता है कि आपको हमारे निवास स्थान में बसना You है। need to go deeper in the Lord this year. तो इस साल में परमेश्वर के साथ बहुत गहराई You में need to जाना talk है। to God in your temple, not in somebody's temple. और आपको अपने मंदिर में परमेश्वर से बात करनी है, किसी और के मंदिर में नहीं। Hallelujah. Many times we ask somebody from your temple, you talk to God and answer my prayers. तो हम बहुत बार कहते हैं कि किसी और से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि तू अपने मंदिर से मेरे लिए प्रार्थना कर और वहां से उत्तर आएगा। No, it doesn't happen like that. नहीं, वैसा नहीं होता है God कभी। says, in your temple, I am dwelling and you are my dwelling place. I will answer and meet all your needs. और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा मंदिर है और तू प्रार्थना करेगा और तेरी सारी जरूरत वहां से पूरी होगी। Hallelujah. हालेलुया। I will dwell in the house of the Lord for. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। Turn your Bible, I'll show you something. Do you want to know something deeper? तो क्या आप और गहराई में जाना चाहेंगे? Last week I was in a meeting. तो पिछले सप्ताह एक मीटिंग में था I was sitting और मैं बैठा हुआ था and I was asking God, और मैं प्रभु से पूछ रहा था, talk to me, God. प्रभु मुझसे बातें कर प्रभु। Lord, I need a word from you. और प्रभु तुझसे एक वचन की मुझे आवश्यकता If है। you love me, you speak to me, God. अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मुझसे बातें कर If you प्रभु। have a call, if you have called me, talk to me, God. अगर तूने मुझे बुलाया है प्रभु, तो मुझसे बातें कर प्रभु। And suddenly that man of God, the prophet, calls me और- and he started prophesying over me. अचानक से वो परमेश्वर का दास, वो नबी मुझ पर भविष्यवाणी करने लगा। Hallelujah. So many things what was in my heart, he prophesied. I give glory to Jesus. और जो कुछ भी मेरे हृदय में था वो सब उसने भविष्यवाणी की So और that- मैं परमेश्वर को महिमा देता That हूँ। is how God loves us. तो ऐसा ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Amen. If God wants to talk to you, you need to repair your house, which is the dwelling place of God in your life. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको अपने परमेश्वर के मंदिर की जो आपके जीवन में है मरम्मत करनी जरूरी है। Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. See this what the word of God says. यशाया का दूसरा अध्याय, दूसरा वचन, तीसरा वचन. Amen. Okay. And it shall come to pass in the later days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above all hills, and all nations shall flow to it. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसके ओर चलेंगे। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Today people are claiming the mountains. और आज लोग परमेश्वर पर दावा कर रहे, पर्वत पर दावा कर रहे They हैं are claiming the mountains that और पर्वत पर चढ़ रहे हैं to see God. परमेश्वर को देखने के लिए, To see God. परमेश्वर को देखने के They are लिए। going mountains after mountains, claiming mountains after mountain, but they couldn't feel God. They couldn't touch God. They cannot even fill with God. और कितने लोग आज एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चढ़ रहे हैं और परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, महसूस In भी the नहीं कर house of सकते। God, I'm not talking about the former. I'm talking about the later days. The coming days is going to be like this. और मैं परमेश्वर के भवन में जो अगली बात हो गई उसके बारे में नहीं, लेकिन जो आने वाली बातें हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। Hallelujah. My Bible talks about the latter days. और मेरा परमेश्वर पिछले दिनों के बारे में बात करने वाला Hallelujah. है In the latter days. और अगले दिन कैसे आएंगे। Mountain of the Lord shall be established on the top of the mountains. Whoa. सब पहाड़ों पर हमारा परमेश्वर का पर्वत जो रहेगा वो सबसे बड़ा Come रहेगा। on, church. Hallelujah. हालेलुया। What the mountain you are seeing now. तो अभी जो पहाड़ियां आप देख रहे हो, Above that there is another mountain is going to be established. That is called the Lord's mountain. और उससे
ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा पर्वत स्थायी होने वाला है, वो परमेश्वर का पर्वत है। And shall be exalted above the hills. और सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। And all the nations will flow to it. Come on. और हर जाति के लोग धारा की नाई उसके ओर चलेंगे। कैसा आएगा? धारा की। हालेलुया। कोई भी धारा को पकड़ नहीं सकता। You cannot stop the flowing river. तो आप कोई भी धारा को थाम कर नहीं रख सकते हो। When धारा comes, और जब भी वो धारा आती the है wall falls. तो वो जो दीवार है वो ढल जाती When है। धारा comes, जब भी धारा आती है so no धारा can stop. तो कोई धारा उसे रोक नहीं सकती है। You are called to be the Lord's house in the latter days on the top of the mountain hills, and everyone will praise God. और अगले आने वाले दिनों में तुम परमेश्वर के भवन के सबसे ऊंचे पर्वत में स्थायी होगे और लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। Nations of the world will flow when you become the temple of the living God. और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चले आएंगे जब आप परमेश्वर का भवन बन जाएंगे। Africa will come, Kenya will come, America will come, Australia will come, New Zealand will come, only because you are the temple of God. तो अफ्रीका आएगा, कीनिया आएगा, यूएसए आएगा, सब देश आएंगे क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर बन चुके Turn होंगे। to somebody and say, I am the Lord's house. और किसी से मुड़ के कहो मैं परमेश्वर का भवन हूँ। Say with me, I will dwell in the Lord's house. और मैं परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। Not for every Sunday, forever and ever. केवल हर इतवार के लिए लेकिन God is on सर्वदा। my side. तो परमेश्वर मेरी ओर है। And I worship God in my temple. और मैं अपने मंदिर में परमेश्वर की आराधना And करूंगा। I know God speaks to me. और मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे बातें In करता the है। latter days, और अगले दिनों में there's going to be rivers of living water. और वहाँ पर बहते जीवन के In जल का धारा the होगा। latter days, there is going to be an outpouring of the Holy Spirit. अगले दिनों में पवित्र आत्मा का बहुतायत से In the उंडेलना latter होगा। days, you will see that the mark of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का चिन्ह होगा। Hallelujah. The latter days, the coming days, end times, latter days, it's going to be outpouring of the Spirit. तो अगले दिन आने वाले दिन और ये अंत समय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बहुतायत से उंडेला जाएगा। Verse 3 says, many people, say with me, many people. और कहो बहुत देश के Say with me, लोग many people. और बहुत लोग They will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord. और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। Hey, look here. और यहाँ देखो All these days, ये पूरे दिन we look up to the mountain. हम पर्वत की ओर देखते हैं। मैं अपने आके पर्वत के ओर लगाऊंगा, मेरा सहायता। कहाँ से आएगा? Hallelujah. हालेलुया। That was latter days. That is former days. तो वो पिछले दिन थे, वो हो गए। That is David's days. और वो दाऊद के दिन थे। You know, in my days, तो मेरे दिनों में I am not going to look to the mountain where the help comes. और मैं केवल पर्वतों की ओर देखूंगा नहीं कहाँ से केवल सहायता नहीं, मैं आएगी। देखूंगा ही नहीं। I will not look up to the mountain where my help comes from. I become the mountain where the help flows from me for the glory of God. हालेलुया। मैं My उस goodness. पर्वत की ओर देखूंगा नहीं, लेकिन वो पर्वत खुद बन जाऊंगा और मेरे द्वारा सहायता आएगी। Because I am the dwelling place of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर का बसने का See that स्थान हूँ। many people shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us his ways and shall walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of God from. और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you there with me this morning? क्या आप मेरे साथ हो इस सुबह? Do you understand the valuability of your life? तो आप समझ सकते हो आपके जीवन का मूल्य क्या है? It's not about building the temple. और ये मंदिर बनाने के बारे में नहीं है, It's I become the temple इसके बारे में है कि आप खुद मंदिर बन and जाए। I walk with the presence of God. और जब मैं चलूंगा परमेश्वर के उपस्थिति के साथ, Wherever I am,
और जहाँ कहीं मैं हूँ, I am that I am is in me. मैं हूँ जो हूँ वो मेरे साथ है। मैं हूँ जो सो हूँ मेरे अंदर है। आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Wherever I am. जो जहाँ कहीं मैं हूँ, Hallelujah. I am that I am is in me. तो मैं हूँ जो सो हूँ हाँ। वो मेरे अंदर है। Say with me, मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। लेकिन काम करता है बाहर। हालेलुया। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.